Hello and welcome to PTI's show at 4 Parliament Street. The foundation of India's school education system is laid by the National Council of Education, Research and Training, or the NCRT. The Autonomous Council is currently undertaking a massive task of revising the grade 1 to 12 curriculum after almost 2 decades. However, the NCRT has also faced criticism that it is rewriting history textbooks and is being selective about it. To talk about the changes underway in the education system, we have with us the NCERT Director, Professor Dinesh Prasad Saklani. Professor Saklani took over as the director in February 2022. Before that, he was the head of the Ancient History Department at Garhwal University. Professor Saklani, welcome to PTI. Thank you for inviting me. You have been at the helm of NCERT for 2 years now, and your term has coincided with the new education policy. So can you tell us a little bit about how NCERT is planning to bring about these changes? Yeah. As you see that the NEP, National Education Policy 2020, was unfolded on 29 July 2020. So after that, the execution part starts. Policy is a document which has to be executed and transformed and translated on the ground. So on that basis, the first thing was to prepare the national curriculum frameworks. There are 4 national curriculum frameworks through which the NEP is being implemented. 2 have already been prepared. National Curriculum Framework for Foundational Stage was released on 20th October 2022, and based on that, the foundational stage learning teaching material has been brought out. As you know that the Jadui Pitara is a new pedagogical tool through which we ensure the transition from the rote learning to the experiential learning, from stressful learning to stress-free learning and joyful learning. So the NEP says about that we must ensure the joyful learning and learn how to learn. That is possible through the experiential learning. So, on the one hand, rote learning is being phased out and experience learning is being emphasized. Yes. At the same time, the curriculum is also changing. For a very, very long time, we had the same curriculum. You mentioned Bharat-centric curriculum. Yes, Just yes. tell us a bit more about that. Just, I have said that after policy, curriculum frameworks has come out. Curriculum framework is the wider thing. It is just not about the curriculum, but it is the framework, school culture, the whole gamut of all these, education related tools are there. नहीं, पुराने करिकुलम में प्रॉब्लम क्या थी? पुराने करिकुलम में प्रॉब्लम हमने बताया ये यूरोसेंट्रिक था। अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में बच्चा नहीं समझता था, और जब हम इसकी बात करते हैं तो हम अपने प्राचीन समय की परंपरा में जाते हैं। आप देखिए, जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी। अपनी प्रकृति के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी व्यवस्थाओं के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में, अपनी मान्यताओं के बारे में अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो हम किसके लिए समझ रहे हैं, और हम किसके लिए नागरिकों को पैदा कर रहे हैं? क्या इसी का परिणाम ये होता है कि हम पढ़ लिख करके विदेश चले जाते हैं और अपने देश में इतना खर्चा करने के बाद फिर देश के काम नहीं आते हैं? तो आजकल इसलिए जो सबसे बड़ा कष्ट बच्चों को होता है, कितना देखिए बचपन उनका ख़त्म हो जाता है रटने में। माँ बाप भी, पेरेंट्स भी उनको लेकर के कितने परेशान रहते हैं, कितने स्ट्रेस में रहते हैं। और अल्टीमेट एम क्या हो रहा है, अगर बच्चे ने रट करके किसी तरह से IIT और इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, अच्छा बन गया, तो विदेश चला जाएगा, और काम चला हुआ है तो भारत में रुक जाएगा। आप कह रहे हैं कि इंडिया में जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो काम चला ना, हुआ है? ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये हो रहा है काफ़ी कुछ कि जो बेस्ट, काफ़ी लोग बाहर चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते, बताइए? ब्रेन ड्रेन होता है। बहुत ज़्यादा होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं बेस्ट हूँ और मैं यहीं रहूँगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ और मैं यहीं रहूँगा। तो वो क्या चीज़ है जो ऐसा सोचने पे मजबूर करती है? वो देश के प्रति जुड़ाव है, लगाव है। वो केवल इसलिए नहीं रहते हैं यहाँ कि पैसा कमाएँगे। वो इसलिए रहते हैं कि अपने समाज के बीच में, अपने समाज के लोगों की सेवा करेंगे, और ये मूल्य आधारित शिक्षा ही ऐसा कर सकती है। तो इसलिए अप्रोच का जो बड़ा चेंज है, हमारी शिक्षा नीति साफ कहती है भारत केंद्रित शिक्षा, एंड वी हैव टू प्रोड्यूस कल्चरली रूटेड सिटीजन्स। They will be culturally rooted, but they will be
capable of understanding the life skills of 21st century. You also said that our scientific knowledge and our Yes, scientific yes, achievements yes. are not completely culturally rooted in our syllabus, at least. जी, जी, जी। मैं ये कहता हूँ कि देखिए हमारा जो वेद हैं या शास्त्र हैं या जो भी चीज़ें उनमें लिखी गई हैं, अगर उनको प्रमाणित किया जाता है तो अब जगदीश चंद्र बसु ने पेड़-पौधे जीवित हैं, सुख-दुःख महसूस करते हैं, ये बताया ना। मगर वेदों में क्या लिखा हुआ है? वेदों में पेड़ों की पूजा करने की बात की गई है। क्यों? पूजा का मतलब क्या होता है? उनको महत्व देना। उनको जीवित माना गया है ना, तो प्रूफ हो गया। ऐसे ही पाइथागोरस की बात आती है। अब पाइथागोरस बौधायन सूत्र से निकला है। ये प्रमाणित हो चुका है और हम अभी पाइथागोरस के नाम से पढ़ाते हैं। तो भारत की जो परंपरा, ज्ञान परंपरा थी, देखिए वो कैसे जो विदेश से लोग आते थे, सिकंदर आए, उनके साथ यूनानी लोग आए, उससे पहले और विदेशी लोग आते रहते थे, वो यहाँ कुछ समझते थे, सीखते थे, बाहर चले जाते थे। फिर अरबों अरबों के संपर्क में आए, तो अरबों के पास हमारा नंबर सिस्टम गया, वहाँ से फिर वो वेस्ट में चला गया। तो बहुत सारे लोग उसको अरब का मानते हैं, मगर सब भारत से गया है वो सब चीज़ें। ये प्रामाणिक चीज़ें हैं, तो कहीं से भी गया है, पर दुनिया के काम आ रहा है। इस पे कोई दो राय नहीं है कि नॉलेज किसी एक डोमेन या किसी एक की मोनोपोली नहीं है। नॉलेज इज़ नॉलेज।